हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज हम यहाँ क्लास 10th का 2022 का एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। कल्पना चावला, द एस्ट्रोनॉट हु डाइड on aboard the space shuttle Columbia, had been sponsoring 2 students from her school, Tagore Bal Niketan in Karnal, each year since 1997 for the International Space School Camp in Houston. Sanpreet Kaur and Namita Alang visited NASA in August 2002. We spent an excellent day with Casey, यानी कल्पना चावला. She even cooked for us and made us feel totally at home, said Namita. These two and other youngsters who benefited from this program, say Casey, as she was popularly known, might have been the first Indian-born woman in space, but was entirely unaffected by her success. Gaurav Goel of the 1999 batch and now an engineering student at Ambala said, not only was Casey down to earth, she still retained the Indian in herself despite living in US for so many years. Even as a student, Kalpana had looked out for other students. She used to pay the fees for 2 of her college mates who could not afford it. It is possible that to this day they are not aware that Kalpana used to pay their tuition fees, says Shovina Sood, Kalpana's junior in the Punjab Engineering College. So Shovina, who now teaches civil engineer, said that sometime Kalpana would hand over the money to her but ask me not to disclose it to anybody. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हु विजिटेड नासा इन अगस्त 2002, और इसका आंसर है सनप्रीत कौर एंड नमिता अलंग विजिटेड नासा इन अगस्त 2002. B. Kalpana Chawla used to pay the fees for her college mates. Is it true or false? It is true. C. Kalpana Chawla was an astronaut. Third is Kalpana Chawla's school was at Karnal. Option B is Karnal. What is synonym for sponsoring? Sponsoring का synonym है contributing. Question number 2. Read the following passage carefully and answer the questions given below it. Once upon a time, large areas of India were covered with forests full of numerous kinds of trees. As the population grew, trees began to be cut down for man's use. That is how the wonderful forest described in our ancient poem came to be. Recover this loss and our government wants to मैंने गलत पढ़ दी. This is how the wonderful tree forest described in our ancient poem came to be destroyed and a great part of our forest wealth was lost. Now we are trying to recover this loss and our government wants trees to be planted all over the country. A few festival has been introduced for this purpose. It is called Van Mahotsav or Forest Festival. Since trees are the country's wealth, we must consider it as our sacred duty to protect them. We should plant new trees wherever we can and look after them well. क्वेश्चंस इसके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वन महोत्सव? इसका इसके लिए आंसर आपको इसमें ही मिलेगा पैराग्राफ में. वन महोत्सव
is a new festival. Its purpose is to plant tree. Next is B. We must dash our forest. We must protect our forest. C. Our dash wants tree to be planted all over the country. Our government. D. Forest are country's dash. Option A burden, option B livelihood, option C wealth, option D डिफेंस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वेल्थ। गिव द वर्ब फॉर ई क्वेश्चन है, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वर्ब है गवर्न। सेक्शन बी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Speech is a great blessing, but it can also be a great curse. For while it helps us to make our intention and desires known to fellows, it can also, if we use it carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of a tongue, the use of an unusual word, or of an ambiguous word, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Again, different classes of people use different vocabularies, and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride. Unwillingly, we may use a word which bear a different meaning to our listener from what it does to men of our own class. Thus, speech is not a gift to us lightly without thought, but one which can demand carefully handling. Only a fool will express himself alike to all kinds and conditions of men. इसके क्वेश्चंस हैं, रीड द, इसमें 2 ही क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के। फर्स्ट इज रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। तो मैं इसके आपको नोट्स बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट लाइन इस लिखिए, हम 4 पॉइंट लिखेंगे इसके, 2 मार्क्स का, इसलिए 2 पॉइंट्स पे 1 मार्क मिलेगा। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स। सेकेंड इज इफ वी यूज केयरलेसली इट कैन मेक अवर एटीट्यूड मिसअंडरस्टूड। थर्ड इज इट कैन क्रिएट एन एनिमी और अ फ्रेंड। फोर्थ इज इट शुड बी यूज्ड केयरफुली। अब सेकेंड क्वेश्चन है गिव अ सूटेबल टाइटल। इसका टाइटल मैं आपको बता देती हूँ, स्पीच अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ये इसका टाइटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू कंप्लेन टू द चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ऑफ योर टाउन regarding insanitary condition of your colony, asking him to take immediate action to make it clean। या फिर ये नहीं आ रहा है आपको तो आप ये भी लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर अंकल टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ एंड थैंकिंग हिम फॉर हिज बर्थडे प्रेजेंट। इन दोनों में से आपको जो भी स्कूल में रिकमेंड किया जाएगा वो आप लिखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये 5 मार्क्स का है तो इसलिए 200 वर्ड्स से आपको ज़्यादा ही लिखना होगा, एटलीस्ट 200 वर्ड्स तो लिखना ही होगा। तो इसका पहला टॉपिक है, आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं, 4 दिए हुए इसमें टॉपिक। अ जर्नी बाय ट्रेन, और सेकेंड है एन आइडियल स्टूडेंट, थर्ड इज पॉपुलेशन प्रॉब्लम, फोर्थ इज द बुक आई इंजॉयड मोस्ट। ठीक है, जिसमें आप फोर्थ वाले में आपको जो भी आपको बुक पसंद है उसके बारे में और जो जिस वजह से वो आपको बुक पसंद है वो आपको लिखना होगा। थर्ड इज़ पॉपुलेशन से जो प्रॉब्लम हो रही है वो लिखना होगा। तो इसलिए आपको जो भी इसमें पसंद आए वो आप लिख सकते हैं, या फिर ये वाला नहीं करना है तो आपके पास और में एक और ऑप्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट प्रिपेयर एन आर्टिकल इन अबाउट 280 वर्ड्स। तो इसके लिए आपको नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन विदाउट एजुकेशन, एक्सप्लोटेशन, वाइडनेस, नीड फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, अडल्ट एजुकेशन, इसके बारे में ये सारे टॉपिक्स के सारे पॉइंट लेकर आर्टिकल बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल गिवन। इसमें आपको एक क्या विजुअल दिख रहा है, एक हाथी दिख रहा है जो पानी अपनी सूंड से एक सिलाई वाले अंकल के ऊपर डाल रहा है, उसकी ड्रेस को उसने गीली कर दिया। तो आप देखिए इसको अपने हिसाब से, जो भी आपको इसमें दिख रहा है
उसके बेसिस पे आपको एक 80 वर्ड्स का पैराग्राफ तैयार करना होगा। सेक्शन सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एनी 5। इसमें 7 दिए हुए हैं और आपको कोई 5 करना होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, डैश यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन या फिर मे, इनमें से कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें से आएगा कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। सेकेंड इज ही प्रॉमिस डैश द मनी टू रिटर्न रिटर्निंग। इसका सही जवाब क्या है? ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी। थर्ड इज ही इज डैश RSS वर्कर, एन, ए या फिर द। इसका सही जवाब है ही इज एन RSS वर्कर। फोर्थ इज यू डैश अंडर एज, इज आर, you are under age. Fifth is keep your mouth dash closed, tightly closed या rightly closed, it is tightly closed. Sixth is he put the book dash the table, on the table, in the table या फिर for the table, it is on the table. Seventh is the thief could not break dash the house, it in the house या फिर into the house, इट इज़ इन टू द हाउस। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्ट एनी 5। इसमें भी आपको करना है, ये ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन सी है, तो इसमें आपको ग्रामर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं, ही वॉज पनिशिंग फॉर स्टीलिंग द रिंग, मेक अ क्वेश्चन विथ वाई वॉज ही पनिश्ड और क्वेश्चन मार्क। Second is I cut my nails last evening, change into negative, I did not cut my nails last evening. Third is they speak money uselessly, they spend money uselessly, change spend into interrogative, do they spend money uselessly question mark। मैंने कहा था ना इंट्रोगेटिव में और क्वेश्चन टैग में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना ज़रूरी होता है, वरना आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शी हैज़ लॉस्ट हर पेन, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड लॉस्ट हर पेन, हैज़ का हैड हो गया। फिफ्थ इज ही वर्क्स हार्ड, ही मे गेट सक्सेस, कंबाइंड विथ सो डैश दैट। इसका आंसर है ही वर्क सो हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस। सिक्स्थ इज ही इज ओल्ड, ही वर्क हार्ड, combined with and or but, he is old but he works hard. Seventh is Ravi tells a lie, make the sentence emphatic। इसका आंसर है Ravi does tell a lie। सेक्शन डी, इस पे ये सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस है वो आपको बुक से ही आएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 6। ये 8 दिए हैं, उसमें से कोई 6 आपको करना है। फर्स्ट इज व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ? ऑप्शन ए लस्ट, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी डिजायर, ऑप्शन सी हेटर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हेटर्ड। सेकेंड इज हु वॉज टॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी थाबो बैकी, ऑप्शन सी मिस्टर डी क्लर्क, ऑप्शन डी जेनानी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थाम्बो बेकी। थर्ड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड? प्लेसिड का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए क्लम्सी, ऑप्शन बी पीसफुल, ऑप्शन सी ग्रीडी, ऑप्शन डी जेलस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीसफुल। Fourth is the embroidered waist belt worn by the Codavas is called option A kappia, option B kufiya, option C curd, option D kurgi। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुपिया या फिर कपिया। फिफ्थ इज सिद्धार्थ वंडर्ड फॉर डैश ईयर्स? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ? ऑप्शन ए अ कैट, ऑप्शन बी अ डॉग, ऑप्शन सी अ शिप, ऑप्शन डी अ क्रो। सिक्स्थ का सही आंसर है ऑप्शन ए अ कैट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड लेंगचो call the employees of the post office? ऑप्शन ए greedy, ऑप्शन बी idiots, ऑप्शन सी crooks या फिर ऑप्शन डी cheats। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी crooks। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द फैमिली फीस्ट ऑन टू सेलिब्रेट सीगल्स फ्लाइट? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी डॉगफिश, ऑप्शन सी जेलीफिश, ऑप्शन डी कैटफिश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉगफिश। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट। She would never had paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She was not as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज Maddie feels that Wanda is senseless? Because Wanda has always worn a faded blue dress, though she said she had 100 dresses. Second is, Wanda Petronsky had many friends in school. Is it true or false? It is false. C. Who is the she here? Option A Peggy, option B Maddie, ऑप्शन सी वांडा, ऑप्शन 4 बॉबी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैडी। क्वेश्चन नंबर डी, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन टॉन्ट एट। इसका सही जवाब है डी का सही जवाब है टीज। E is who was the most popular girl in school? ऑप्शन इसका राइट आंसर है पैगी। F, राइट द एंटोनिम फॉर पुअर। पुअर के लिए विलोम शब्द क्या होगा? रिच। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड फ्रोज। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पूरे 6 क्वेश्चन है आपके पास ये वाले। इनमें आपको हर क्वेश्चन में और का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो इसमें से आपको जो भी आए आप वो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोनों ही 2 मार्क्स के हैं। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। पोइट्री, ये पोइट्री से आएंगे और इनमें से भी आपको 2 में से हर ऑप्शन में से 2 करना है। ऑप्शन ए में से भी आप और का कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बी में से भी आप और के कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड। ये फुटप्रिंट से है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है और 4 आपके पास ऑप्शन है। 2 में 4 में से कोई भी आपको 2 करना है और करके इसमें ऑप्शंस दिए हुए। ये 4 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन इन 75 वर्ड। ये फ्रोज से है और 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोनों में ही ऑप्शंस है आपके पास। तो दोनों में 4 क्वेश्चन है टोटल और इसमें से आपको कोई 2 करना है। ये 3-3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है पर पोइट्री से है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है जो 3 मार्क का है। और क्वेश्चन नंबर 16 भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बट फुटप्रिंट से है। तो इसमें से आपको कोई एक करना है। इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेट 4 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।
do like this video, comments on it, share this video and subscribe our channel. And also जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है हमारी वेबसाइट की, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उसमें अपना क्लास 10th का 2022 का और स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह 100% उसी में से पेपर आएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.